Today we will see exercise 3.1. Question number first. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? Here we have to describe the position of a table lamp which is on a study table. We can draw a figure. This is your study table. Okay. And the table lamp is at this point. Okay, we know that to describe the position of an object on a plane we require two perpendicular lines, first horizontal line and second vertical line. Here we can take any two edges as horizontal and vertical line. Okay, suppose or consider the lamp. Here this is a lamp. Okay, consider the lamp as a point. Okay, and the top layer of this table as plane. Okay, and the table as plane. Okay, and bottom line and left edge as perpendicular lines. Okay, and any two edges as perpendicular lines. Okay, now we know that to describe the position of a point we require two perpendicular lines, and we also know that here we need any informations. Okay, means first of all we can measure the distance of the point, this point from the left edge, and the distance of the point from the bottom edge. Okay, suppose this will be 20 centimeter and this will be 30 centimeter. Means we can write it, measure the distance of the point from the left edge. Okay, suppose this is 20 centimeter. Okay, and also measure the distance of the point from the bottom edge. Suppose this will be 30 centimeter. Okay, here we have two informations. Okay, now we can describe the position. We can say this point, means this lamp is placed at a distance of 20 centimeter from left edge, and also this point means this lamp is placed 30 centimeter
from the bottom edge. Okay, and we can write the position of the lamp. We can write the position of the lamp as 2030. We can also write 30 and 20. It depends on your order of fixes the table. Means we always write the horizontal length, horizontal distance first. Means we first of all we write the horizontal length at the first place, and then the perpendicular means the vertical length. Okay, here horizontal length is 20 centimeter and vertical length is 30 centimeter. Okay, now let's proceed to next question. Question number second. You can write this. Question number second. Street plan. Okay, a city has two main roads. मतलब एक शहर में दो मेन रोड है which cross each other at the center of the city. जो दोनों रोड क्रॉस कर रहे हैं शहर के सेंटर पे. सपोज these are two roads. Okay, which cross at the center of city. These two roads are along the north south direction and east west direction. और ये जो roads है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं. ठीक है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स. और जितने भी स्ट्रीट्स हैं वो इसके पैरेलल रन कर रहे हैं. ओके, एंड आर 200 मीटर अपार्ट. और 200 मीटर दूरी पे है. जितने भी स्ट्रीट्स है 200 मीटर दूरी पे है. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. और हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है. देख लो, और पैरेलल भी है ना. दिस इज फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. Also in east west direction, first street, this is second, third, fourth and fifth. Street number first, second, third, fourth, fifth. First, second, fourth, third, फोर्थ एंड फिफ्थ. ये सारे स्ट्रीट जो है पैरेलल है और 200 मीटर के डिस्टेंस पे है. मतलब इसके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है. ठीक है ना, और सभी पैरेलल्स हैं. यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. सपोज कर लेना है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना 200 मीटर के इक्वल है. मतलब जो हम ये ड्रॉ करेंगे फिगर, ये 1 सेंटीमीटर रहेगा और यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर के इक्वल है ना. ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगा. ठीक है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी. दिस इज योर मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस. और जितने भी रोड्स है ना एंड स्ट्रीट्स है सबको सिंगल लाइन से. ये तो सिंगल लाइन से ही हम रिप्रेजेंट किया है ना. नाउ देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. वी कैन सी हियर देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट. यू नो व्हाट इज क्रॉस स्ट्रीट? जब
दो स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। देख लो बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ थर्ड, ऐसे है ना क्रॉस स्ट्रीट जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स। एक पार्टिकुलर स्ट्रीट है जो दो स्ट्रीट से मिलकर बना है, देख सकते हो एक पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, ये पहला क्रॉस स्ट्रीट है पार्टिकुलर जो दो क्रॉस स्ट्रीट से ना बना है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पहला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ in east west direction, in east west direction, then we will call this cross street as 2 5, then we will call it as 2 and 5, okay। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड करना है तुमको। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, इस कन्वेंशन को यूज करके देख लो क्या फाइंड करने हैं। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड can be referred to as 4 3, and second how many cross streets can be referred to as 3 4, okay। This is your question, okay। Here you can see again, if second street running in north south direction, जो second street है north south direction में जो है ना, ये north और ये south है ना, देख लो north south direction में first और ये second street, ठीक है। and fifth in east west direction, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, उसको हम कैसे लिख रहे हैं, उसको 2 5 लिख रहे हैं ना। तो देख लो ये सेकंड और ये फिफ्थ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेकंड नॉर्थ साउथ वाला और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला फिफ्थ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसको हम 2 और 5 से कॉल करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को यूज करके हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, मतलब 4 और 3 से हम कितने स्ट्रीट्स रेफर कर सकते हैं। देख सकते हो 4 3 का मतलब, जैसे कि यहाँ 2 और 5 का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट प्लेस है 2 वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा है ना, और सेकेंड जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 4 है, मतलब ये 4 वाला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है स्ट्रीट। और सेकेंड प्लेस पे 3rd है, मतलब ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है। देख लो ये 4 और ये 3 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 और 3 यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देख सकते हो। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का 4th नंबर स्ट्रीट, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रन कर रहा है वो 3rd, यहाँ इंटरसेक्ट किया ना, तो इसको क्या लिखेंगे 4 and 3, ठीक है। अगेन हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 and 4, मतलब फर्स्ट प्लेस जो है, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो जैसे 3rd मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है ना,
तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड हो गया, मतलब ये स्ट्रीट, और 4 दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड प्लेस पे 4 है ये, तो ये थर्ड, और फोर्थ जो है ईस्ट वेस्ट, सेकंड प्लेस पे जो है ईस्ट वेस्ट में रन कर रहा है। तो देख लो ईस्ट वेस्ट में फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट एंड फोर्थ स्ट्रीट, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों, यहाँ पे है ना, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमको कितने ऐसे स्ट्रीट्स मिले हैं, फर्स्ट में देख लो, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, कितने मिले हैं, सिर्फ एक ही ना मिला है, एक क्रॉस स्ट्रीट मिला है, देख लो, जो एक क्रॉस स्ट्रीट जो मिला है जो 4 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मींस इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड भी, इसका आंसर हम दे सकते हैं ओनली 1, ठीक है, इसका भी आंसर दे सकते हैं हम, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, मतलब 3 और 4 वाला कितने मिले हैं, मात्र एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिला है, देख सकते हो 3 और 4 का, तो इसका भी आंसर क्या होगा 1। मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट जो है 4 और 3 एंड 3 4, फर्स्ट 4 3 एंड सेकंड 3 4, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, दोनों यूनिक है, मीन्स अलग अलग है ना। ओके, थैंक यू।